एक इंपॉर्टेंट टॉपिक थर्मोडायनेमिक्स का, known as work. So simply we can define work. Work is said to be done. Work is said to be done when the point of application of force is displaced in the direction of force. Again, I repeat, a work is said to be done when the point of application of force is displaced in the direction of force. So mathematically हम लिखते हैं W is equal to F into dl. Here this F is magnitude of force, ये magnitude of force है, and dl is the displacement. ये displacement of point of application of force in the direction in which the force acts, or in the direction of force. So this is the displacement in the direction of force. So this is a mechanical work. ये mechanical work है. There are other forms of work. So generally हम लिखते हैं general expression हम लिखते हैं work के लिए for all types of work. So we write work done is equal to generalized force into generalized displacement. Generalized displacement. ये हम लिखते हैं for all types of the expression. Work done is called generalized force into generalized displacement. So in chemistry, there are two types of works involved, or we deal with two types of works in chemistry. Number one is electrical work. So this electrical work, this type of work is involved in case of reactions, in case of chemical reactions involving ions. Ions charged species होते हैं, यानी जिन रिएक्शन में इन्वॉल्व आयन होते हैं उनमें इलेक्ट्रिकल वर्क डन हो सकता है, इलेक्ट्रिकल वर्क हो सकते हैं उनमें इन्वॉल्व. सो यहां पर जो इलेक्ट्रिकल वर्क डन हम लिखते हैं इलेक्ट्रिकल वर्क डन. इसमें जो जनरल फोर्स है, जनरलाइज्ड फोर्स यहां पर है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. और यहां पर जो जनरल डिस्प्लेसमेंट है, इस इन दिस केस दैट इज क्वांटिटी ऑफ चार्ज or electricity, quantity of electricity flowing through the circuit. So this is generalized displacement here. So in case of electrical work, the generalized force is EMF, and general displacement is quantity of charge, quantity of electricity flowing through the circuit. So this is electrical work. So we have one more work in chemistry which is involved in chemistry, that is mechanical work. उसको हम बोलते हैं mechanical work. वर्क ऑफ एक्सपेंशन बोलते हैं उसको, वर्क ऑफ एक्सपेंशन और कंप्रेशन यहां बोलते हैं, और यहां बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क. So this work is involved when we have gaseous systems, जब हमारे पास gaseous systems होंगे. So when a gas expands or contracts against the external pressure, this kind of work is said to be done. Yani when gas expands or contracts against external pressure, this type of work, that is work of expansion or compression or pressure volume work, is said to be done. So the expression for this type of work can be derived as under. हम उसको expression को कैसे हम derive करेंगे? Let us derive the expression. हम एक cylinder लेंगे. Let us consider gas. Let us consider gas in a cylinder fitted with a piston, weightless and frictionless piston. Let the area of the क्रॉस, दिस इज पिस्टन, ये पिस्टन है, ये इसमें गैस है. लेट द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, हम मानते हैं यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है,
area of cross section of the cylinder. So area of cross section, that is equal to A square centimeter. हम मानते हैं A square centimeter या A centimeter square. So ये एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. अब हम मानते हैं डिस्टेंस थ्रू विच द गैस एक्सपेंड्स. लेट द डिस्टेंस थ्रू विच, हम मानते हैं गैस एक्सपेंड होता है अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर. लेट द डिस्टेंस थ्रू विच गैस एक्सपेंड्स इज इक्वल टू dl. हम मानते हैं उसको dl. मगर ये एक्सपेंड तब हो सकता है जब इंटरनल प्रेशर जो होगा, इंटरनल प्रेशर दैट इज ग्रेटर देन एक्सटर्नल प्रेशर. यदि प्रेशर ऑफ गैस ज्यादा है एज कंपेयर्ड टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब ये गैस एक्सपेंड होगा. सो जब ये एक्सपेंड होता है ना थोड़ा स्मॉल डिस्टेंस, हम मानते हैं वो dl के बराबर वो डिस्टेंस. अब हमारे पास जो प्रेशर होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया. फोर्स प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया. सो इसका मतलब है P जो यहां पर है प्रेशर, इट इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया A, where F is here the force acting on the piston. जो एक्ट करता है फोर्स एक्टिंग ऑन द पिस्टन, दैट इज इक्वल टू F. जो गैस एक्ट करता है बाय एक्सपेंशन, जो फोर्स होता है एक्ट ऑन द पिस्टन, दैट इज इक्वल टू F. सो P इज इक्वल टू F by A. सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस लाइक दिस. यहां पर हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू P into A. So यहाँ से P is equal to F by A, ये हम ऐसे लिख सकते हैं F is equal to P into A, where F is the force acting on the piston, P is the pressure of the gas, A is, यहाँ पर P is the pressure, A is the area of cross section, ये area of cross section है. Here P is the external pressure, that is the atmospheric pressure. So now work done by the gas. अब यहां पर हमारा पास गैस है, जो गैस एक्सपांड होता है. नाउ वर्क डन बाय द गैस, जो वर्क डन बाय द गैस, दैट इज दिस इज वर्क डन बाय द गैस बाय द गैस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस. ये जनरल एक्सप्रेशन है इसके लिए. सो हियर वी हैव फोर्स इज इक्वल टू F, डिस्टेंस इज इक्वल टू dl. इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो हमने लिया है, द गैस एक्सपेंड्स द डिस्टेंस थ्रू विच गैस एक्सपेंड, दैट इज इक्वल टू dl. सो फोर्स यहाँ पर F के बराबर है, विच एक्ट्स ऑन द पिस्टन. सो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वर्क डन बाय द गैस दैट इज F. F तो हमारे पास P into A है into dl. सो यहां पर जो ये एरिया और ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एरिया इंटू डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम, यानी A इंटू dl इज इक्वल टू वो आएगा dv के बराबर, यानी स्मॉल वॉल्यूम के बराबर आएगा वो. ये dv इज द स्मॉल वॉल्यूम, स्मॉल इंक्रीज इन वॉल्यूम हम लेते हैं, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस ड्यूरिंग एक्सपेंशन. जब एक्सपेंड होता है तो वहां पर इंक्रीज होता है वॉल्यूम में, गैस का वॉल्यूम इंक्रीज होता है. Let the increase be equal to dv. So A into dl is equal to dv. So here dv is the small increase in the volume of the gas. ये small increase है, small increase in the volume of the gas. So इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P into dv. ये P into dv है. सो अब हम लिखते हैं स्मॉल वर्क डन बाय द गैस, स्मॉल वर्क डन बाय द गैस, स्मॉल, क्योंकि स्मॉल वॉल्यूम है, स्मॉल वर्क डन बाय द गैस, वो हम लिख सकते हैं dw इज इक्वल टू P into dv. सो दिस इज द स्मॉल वर्क डन बाय द गैस. नाउ अगर हम मानते हैं, नाउ इफ द गैस एक्सपेंड्स, अगर हम मानते हैं गैस एक्सपेंड होता है, गैस एक्सपेंड्स, यहां पर मानते हैं इफ द गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम,
यानी इफ द हम मानते हैं गैस एक्सपैंड्स फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम V1 to फाइनल वॉल्यूम V2, अगर एक्सपैंड ऑफ गैस होगा, इनिशियल वॉल्यूम उसका इनिशियल वॉल्यूम था V1, अब वो एक्सपैंड हो जाता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, दैट बिकम्स इक्वल टू V2, दैट इज V2 इज द फाइनल वॉल्यूम. देन टोटल वर्क डन, then total work done. Total work done. अब यहाँ पर टोटल वर्क डन हम कैसे लिखेंगे? दैट इज इक्वल टू W. ये टोटल वर्क डन है. इंटीग्रेशन इसको हम करेंगे, छोटी छोटी वर्कों को हम करेंगे सम, दैट इज इंटीग्रेट करेंगे, दैट इज PdV. ऐसे हम लिखेंगे बिटवीन द लिमिट्स V1 एंड V2. ऐसे हम लिखते हैं, ये मैथमेटिकली हम लिखते हैं, ये टोटल वर्क लिखते हैं ऐसे, टोटल वर्क डन बिटवीन द वॉल्यूम V1 and V2. So this is actually during the ये होता है रिवर्सिबल एक्सपेंशन, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है ये, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, ये ड्यूरिंग इरिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है ये. सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, PW इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे इसको, दिस इज P, ये बनेगा V2 माइनस V1, ऐसे इसका बनेगा dV, ये बनेगा V, फिर उसके जब हम लिमिट्स देंगे सो ये बनेगा W इज इक्वल टू P V2 माइनस V1 इंटीग्रेशन करने के बाद, सो ये बनेगा W इज इक्वल टू P डेल V. ये P डेल, ये दिस इज लॉरेंट चेंज इन वॉल्यूम, ये लॉरेंट चेंज इन वॉल्यूम है, सो W इज इक्वल टू P डेल V. So this is the expression for the work, total work. Now sin of W, अब इसका sin क्या आएगा? Sin of W, इसका sin W जो यहां पर है, ये W जो है ये बनेगा पॉजिटिव अगर ये होगा, अगर ये इसका साइन होगा पॉजिटिव, इसका साइन होगा पॉजिटिव इफ द वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. अगर सिस्टम पे काम किया जाए, अगर सिस्टम पे काम होता है, इसका साइन होता है पॉजिटिव, दैट मींस उस केस में एक्सपेंशन ऑफ द गैस नहीं होता है, एक्सपेंशन वहां पर होता है कंप्रेशन ऑफ द गैस, वहां पर होगा कंप्रेशन ऑफ द गैस, यानी गैस का वॉल्यूम कम होगा, कंप्रेशन ऑफ द गैस होगा, यानी गैस का वॉल्यूम कम होगा. यहां पर V1 ज्यादा होगा, V2 कम, V1 वॉल्यूम ज्यादा होगा यहां पर, और V2 यहां पर कम होगा. सो इस केस में W का वैल्यू आएगा पॉजिटिव. अब अगर W होगा नेगेटिव, दैट इज वर्क इज डन बाय द सिस्टम, यानी सिस्टम काम करता है, दैट मीन्स इस केस में एक्सपेंशन हो जाएगा, यानी गैस विल एक्सपैंड, गैस विल एक्सपैंड इन दिस केस. अगर W होगा नेगेटिव, अगर होगा उस केस में गैस एक्सपैंड होगा. सो जनरल एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन बाय द सिस्टम हम लिख सकते हैं. फिर अगर हम लिखेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम, उसके लिए हम जनरली लिखेंगे W इज इक्वल टू, इफ द वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऐसे लिखते हैं, फिर जनरल माइनस P एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल हो गया, एक्सटर्नल प्रेशर, दैट मींस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डेल V. सो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन. और ऐसे भी लिख सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये फाइनल वॉल्यूम माइनस V इनिशियल वॉल्यूम. सो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द वर्क ऑफ प्रेशर वॉल्यूम वर्क और वर्क ऑफ एक्सपेंशन, वर्क ऑफ एक्सपेंशन, ये इसके लिए जनरल टर्म है, जनरल एक्सप्रेशन है वर्क के लिए. W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल V, और W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल Vf minus Vi, where Vf is the final volume and Vi is the initial volume. So units of this work, इसके यूनिट्स क्या होते हैं, इस वर्क के यूनिट्स क्या होते हैं? वर्क तो पता है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सो इसका यूनिट होगा अर्ग और जूल. इसका यूनिट होता है अर्ग और जूल. आपको पता है 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स, ये इसका कन्वर्जन फैक्टर है. एक जूल होता है 1 न्यूटन मीटर, 1 न्यूटन मीटर होता है एक जूल, दैट इज इक्वल टू, अगर इसको दैट इज 1
that is k 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसका असली यूनिट है, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. सो दिस इज जूल, इसके बराबर होता है जूल. ये कैसे आता है? kgm आपको पता है, न्यूटन जो फोर्स, न्यूटन होता है फोर्स का यूनिट, न्यूटन होता है फोर्स का, क्योंकि वर्क होती है फोर्स इंटू डिस्टेंस. ये हो गया न्यूटन, हो गया फोर्स, एम हो गया डिस्टेंस का यूनिट, मीटर हो गया न्यूटन मीटर. अब जो फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, वहां से निकलता है मास का केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड. सो इस तरह हम कर सकते हैं. अगर हम इसको हम फिर करेंगे इसमें सबस्टिट्यूट, सो विल गेट न्यूटन मीटर आएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. सो दिस वाज अबाउट द work and expression for the pressure volume work or work of expansion. Okay.